Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the 22nd episode of Professional Talks. Today we have Mrs. Sweta Katta. She had completed her CS professional exams from Ahmedabad and also did nursery teachers training course from AIECCE. Ladies and gentlemen, Mrs. Katta is having so much relevant experience in the field of education industry as well as in the edtech. So we will discuss much more with Sweta ma'am. So let's welcome ma'am to our talk show Professional Talks. Hi Vikash. Good evening, good Yeah. afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you, ma'am? And I'm good, and good afternoon all the viewers. Thank you so much, ma'am. This is our 22nd episode, and from in the last 21 episodes, we had recorded many of the videos with young professionals like IAS officers, IRS officers, and from the aviation industry, and along with the chartered accountants, company secretaries, and lawyers also. So this time we had decided to invite an educator also, and who is Great. much more interested in the field of academics. So we have Thank you seen so your much. profile, ma'am. We have seen your profile. So we decided to invite Shweta ma'am to our 22nd episode. I'm grateful. First of all, I'm grateful to you for calling me here. I was scrolling down your YouTube channel. I've seen you call so many dignitaries from various fields, and like I believe I am a very minute thing in front of them. Sharing a platform with all the dignitaries like that feels so blessed by myself. And thanks to you a lot for calling me here. Though we have been into the discussion for shooting this thing and it got delayed because of me. Yes. So actually, apologies from my end for that too. Okay. And No I issues, wanted ma'am. to add on one little thing that I believe I have not shared with you that I have completed my law degree also just previous month. So by now I Okay. am a lawyer as well along with CS. That's really great, ma'am. Ma'am, you are possessing so much of degrees. So adding more degrees in our portfolio is helpful for the business purpose or helpful for the job purpose in future Like for myself, you are asking for people. for random people for adding more and more Yeah. degrees. So basically, yes, it gives us so much confidence. The very first thing that you feel yourself so confident for like applying for anything, and definitely your resume comes up to in a cream quality when you have so many things done all along with your other things which you're pursuing or whatever, and that helps you. That open up those areas where you can plan to schedule your future for. Okay, that's really good. So, ma'am, we will start our interview with the first question that is very general. मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने बेसिक स्टडी आपने कहाँ से स्टार्ट आप जरा अपना Okay, basically. इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा. Sure, sure. Basically, I am born and brought up in Ahmedabad. तो गुजराती नहीं हूँ मैं, आई एम प्रॉपर मारवाड़ी ओनली, पर पेरेंट्स वहीं Okay. रहते थे. I have been in my school days. I have been to Jaipur also. My father was accountant in Golcha Cinema Hall. If you have heard about it. Yes. I Yeah, have so he heard was about it. working here. 5-7 साल तक उन्होंने यहाँ पे बहुत पिक्चर भी देखी है और he was working as an accountant here. And then we Okay. shifted to Ahmedabad. और Okay. वहां जाके फिर हमारा पूरा स्कूलिंग मेरा कॉलेज सब कुछ एकेडमिक सारा पार्ट आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड व्हेन वी शिफ्टेड देयर. सो Okay. बेसिकली आई वाज अ गुड पर्सन इन एकेडमिक्स. तो मैंने 10-12 जो किया ना तो काफी अच्छे लेवल पे किया. वो लोग अभी भी हमारे से बहुत कनेक्टेड हैं एंड व्हेनेवर आई हैव अ लिटिल विक्ट्री इन माय लाइफ दे आर देयर टू अप्रिशिएट मी. तो वो Okay. पुश मिलता है कि पता कुछ और करना है लाइफ में, राइट? So Okay. Okay. by the time I got married, I have done BCom. I was just a Okay. graduate with a commerce degree. That is what I was having. ओके. तो मैम आप अहमदाबाद में जब थे तो आपको सीएस जो कोर्स है कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है उसका अवेयरनेस उस टाइम पे कैसे हुआ? इस तरह आपने काउंसलिंग करवाई आपकी या फिर आपके नियरेस्ट कोई ऐसा स्टूडेंट आपने देखा कि वो सीए या सीएस या कुछ एमबीए परस्यू कर रहा हो कॉमर्स में, उसका नॉलेज आपको कैसे हुआ उस टाइम? ओके, आई वुड टेल यू वन थिंग. मैंने जब 10th किया था ना तो मैं फर्स्ट रैंक होल्डर थी पूरे स्कूल में. और हमारे ओके. बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब ने साइंस लिया था और मैंने अकेले ने कॉमर्स लिया था. इट वाज ओके. कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग बिकॉज एवरीवन वाज फीलिंग कि श्वेता तो साइंस ही लेगी, टॉपर है, राइट? बट आई ओके. टू कॉमर्स. आई डिड 11th 12th. अभी तक भी कुछ नॉलेज नहीं थी क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था जिसने कॉमर्स स्ट्रीम लिया होगा.
देन आई थॉट ऑफ चलो सब करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं। देयर वाज नो काउंसलिंग आल्सो बैक देन, इतना नहीं होता था करियर काउंसलिंग होगा या क्या करना है। आजकल के तो 10th के बच्चे मैंने देखा है, माय किड्स आल्सो दे प्रिपेयर्ड, मम्मा इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। बैक देन इट वाज लाइक चलो 12th करो, उसके बाद में विल थिंक, बीकॉम कर लो, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। सो व्हेन आई वाज परसुइंग बीकॉम, मेरे एक चाचू हैं, ही वाज सीएस बैक देन। तो ही टोल्ड मी वंस कि श्वेता, गर्ल्स के लिए सीएस बहुत अच्छा है, यू कैन परस्यू दैट। बट वो चाचू ने कुछ इतना बहुत तोप काम नहीं कर रखा था तभी तक। तो आई यूज टू फील कि जब इन्होंने सीएस करके अभी तक कुछ नहीं किया है, ही सो ग्रोन अप, आई डोंट ओके फील कि मेरे लिए भी इतना अच्छा रहेगा, एंड आई ड्रॉप दैट आइडिया। आई जस्ट डिड माई बीकॉम, इवेंचुअली आई गॉट मैरिड एंड देन आई डिड माई एमकॉम आफ्टर मैरिज। उसके बाद गैप आया काफी सारा, 10 साल का एक्चुअली। I had my ओके kids, I was at home, एकदम like managing the house, the kids, blah blah. But that was there in my mind because मैंने 10th टॉप किया था, 12th टॉप किया था, कॉलेज टॉप किया था, तो हमेशा वो रहता है, एकेडमिक्स का बहुत अच्छा था। इवन माई फ्रेंड सर्कल भी, श्वेता कुछ नहीं कर रही क्या, यू आर डूइंग जस्ट, यू आर मैनेजिंग योर हाउस, यू हैड द कैलिबर, व्हाई डोंट यू परस्यू समथिंग। तो देन एग्जैक्टली आई रिकॉर्ड माई चाचू बैक देन कि उन्होंने सीएस बोला था, व्हाई डोंट आई स्टार्ट डूइंग दैट। क्योंकि तभी तक वो 10-12 साल में चाचा ने भी बहुत अच्छे लेवल पे, अभी तो ही इज लाइक, he's superb, he's doing so good. So it eventually happens, but then I got like inspired with him कि हाँ ये थे फर्स्ट बंदे जिन्होंने कहा था कि सीएस करके कुछ होता है जो बहुत अच्छा रहेगा गर्ल्स के लिए, अगर if you want to do that. And then I started enrolled myself after I had second baby, I enrolled myself for CS, thinking ओके कि शायद कर लेंगे। ओके। It was तो like काफी that. लेट जर्नी आपकी स्टार्ट हुई सीएस को लेके। काफी लेट, लाइक मैंने जब शुरू किया था तो एवरीवन वाज लाइक कि आर यू मैड। और हम्म, यहाँ राजस्थान का कल्चर थोड़ा सा ऐसा है, अहमदाबाद में फिर भी ऐसा होता है कि पढ़ाई करती हैं लेडीज, थोड़ी ओपन माइंडेड है। हियर व्हेन यू आर मैरिड टू प्रॉपर ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू आर टेलिंग दैट आई वांट टू परस्यू माय एकेडमिक्स आफ्टर 10 साल। जरूरत भी क्या हाँ है, बट एग्जैक्टली ऑल्सो फीलिंग एग्जैक्टली। क्या जरूरत है। तो या क्वेश्चन दैट इज दैट हैपेंड। कि क्वेश्चन मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या जरूरत है, क्यों करना है, जब ऑलरेडी जरूरत एवरीथिंग क्या इज वेल है। सेटल्ड तो आपको क्यों करना है। ओके, फॉर मी आई वुड से, मेरे को इसलिए करना था क्योंकि मुझे वो वॉइड लग रहा था कि श्वेता यू वर सच अ गुड पर्सन इन एकेडमिक्स, यू हैड डन सो गुड, और सब तरह से अप्रिसिएशन मिलता था। एंड आई ऑल्सो हैड दैट थिंग इन माई माइंड, कुछ तो करना है, और कुछ करना है सूट वूट पहन के जाते हैं ना, वैसा वाला करना है। सो व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू सी दोस एमआरस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो, एंड आई यूज्ड टू गेट सो मच फैसिनेटेड कि वाओ दे ड्रेस अप सो वेल, shoes, woes, blah blah. So I want to go into some such field जहाँ पे you portray that kind of appearance for yourself. सो आई फेल्ट कि चलो सीएस तो करना ही है, तभी बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग फ्रॉम माय साइड। इसका कुछ पता नहीं था कि आगे जाके आप जॉब करोगे या नहीं करोगे, या मैं उसको इनकैश कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट अ डिग्री आई वुड बी होल्डिंग, दैट वाज माय ओके पर्पस। ओके ओके। तो मैम आप सीएस के साथ साथ फिर आप एकेडमिक में कैसे इन्वॉल्व है, लाइक आप स्कूल्स में, और आपने एक कोर्स बताया शायद AIECC, मुझे उसका एब्रीविएशन नहीं पता है, आप जरा बता सकते हो। It's actually college name. It's the abbreviation of college itself. But the course is entity that is called Nursery Teachers Training Course. So ओके basically, when I decided to go up with the school, से हम सबको पता होता है कि लेडीज के लिए सबसे अच्छा जॉब जो है वो स्कूल का है। बच्चों के साथ स्कूल जाएंगे, बच्चों के साथ वापस आ जाएंगे, छुट्टियां बहुत मिलती है, सारे हॉलीडे सेलिब्रेट, लाइक जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उस पे हॉलीडेज होती है। That was the only reason I decided कि चलो when I want to do something as a job, why not start with there, right? लेकिन आपको स्कूल में जॉब जाने करने के लिए कुछ इनिशियल डिग्री तो होना चाहिए ना, इट कैन बी एग्जैक्ट आइदर बीएड और एनटीटी। सो आई थॉट ऑफ ओके डूइंग दैट, क्योंकि आप रॉ कैसे जाओगे, चलो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास डिग्री भी नहीं है, देन यू हैव टू like you have to struggle a lot, right? So I thought of completing that degree so that I get बट good आई थिंक entry मैम in यू any आर of the हैविंग schools. सीएस डिग्री आल्सो, यस मैम, बट यू आर Yes, हैविंग yes. सीएस डिग्री दैट टाइम, तो वो हेल्प की आपकी कहीं फ्यूचर में उस फील्ड को For लेके। management post, no, CS did not help me for management post. But had I preferred teaching, अगर मैंने सोचा होता 11th 12th में मुझे कॉमर्स स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाना है, तो डेफिनेटली सीएस वुड हैव हेल्प, क्योंकि ओके सीएस आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री, उसके साथ आपको बीएड की जरूरत नहीं होती है सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए या कॉलेज में पढ़ाने के लिए। बट आई ओके वांटेड टू गो इन मैनेजमेंट पार्ट देयर, फॉर दैट ओके आई हैड टू डू दैट एमपीटी कोर्स। ओके। तो मैम यहाँ जैसे ही आपने सीएस से एकेडमिक में आपने स्विच किया, तो उसमें मेजर चैलेंजेस क्या रहता है। फॉर एग्जांपल सीएस इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट फील्ड, तो वहाँ कॉर्पोरेट की कंप्लाइंसेस होती है, लीगल कंप्लाइंसेस होती है, कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं, कोर्ट रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, उन सब
उसके अलावा एकेडमिक्स में क्या चेंजेस है, क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में है उसके कारण, एकेडमिक के कारण? ओके, बेसिकली अगर आप स्कूल से जॉब करते हो ना, तो अभी तो बहुत लीगैलिटी हो गई है स्कूल जॉब के लिए। इट इज नॉट लाइक दिस जस्ट गोइंग पासिंग द इंटरव्यू एंड गेटिंग सिलेक्टेड। यू हैव टू हैव वो पूरा 10 पेज का आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जिसमें काफी सारे उनके नॉर्म्स होते हैं, सारे बेसिकली एवरीथिंग इज देयर। तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाता है कि हाँ, हमको आधी चीजें तो पता होती है कि कितना अब इस इंडस्ट्री में चलता है और कितना चीजें इन्होंने एड ऑन करके रखा है। तो आप थोड़े से वाइडेंड होते हो आप नॉलेज के लिए, राइट। सेकेंडली, आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंग सोचा जाता है, क्योंकि आपने एक ऐसी डिग्री करके आए होते हो जो बाकी लोगों के पास नहीं होती है। तो वो हमेशा आपको टॉप समझते हैं कि नहीं, ये बंदी बहुत ज्यादा है, ये बंदा बहुत ज्यादा है हमसे। तो यू गेट दैट एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स ऑल्सो। लोग थोड़े शांत रहते हैं कि नो, शी इज हैविंग अ मेजर नॉलेज अबाउट समथिंग विच वी डोंट इवन हैव दैट, राइट। So that happens. That gives a good impact of that thing also. ओके। ओके। तो मतलब अभी एट प्रेजेंट मैम आप अभी पोदार स्कूल में हो, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? आप जरा वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप बच्चों के साथ किस तरह से, अभी आप 5th या 6th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को आप मैनेज कर रहे हो, तो वहाँ क्या मेजर चैलेंजेस है? सी, मेरा मैनेजमेंट रहता है प्री प्राइमरी विंग का। मैक्सिमम टिल 5th स्टैंडर्ड आई मैनेज, दैट इज नर्सरी टिल 5th स्टैंडर्ड, एंड 6 ओके। to 12th is being managed by principals. So the school is till 12th standard, from nursery till 12th standard. So we have to have everything to be looked after related to students, the parents' queries, basically everything related to। आप ये समझ लीजिए कि हम ही को एक प्लम्बर भी अपॉइंट करना होता है स्कूल के लिए, और हम ही को एक 12th का टीचर भी अपॉइंट करना होता है स्कूल के लिए। तो ओके। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन स्कूल। ओके। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके। तो यहाँ आपके पास स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो। 100%। ओके। तो मैम जब आप अहमदाबाद थे, अहमदाबाद से आप स्विच हुए जयपुर में, वहां भी आपको मेजर चैलेंजेस हुए क्योंकि अहमदाबाद इज बिग सिटी एज कंपेरिजन टू ये जयपुर, तो आपको लगा कि वहां करियर के ऑप्शंस थोड़े ज्यादा थे और जयपुर में मुझे थोड़े से ऑप्शंस कम मिल रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आई पहले कभी? Yes, if you're talking about CS, then yes, huge difference is there. My sister is also CS LLB, and we both did it together. हमने दोनों ने, मैंने करा तो उसको पुश मिल गया क्योंकि I shall also pursue that, right? And मैं CS की जॉब या CS की चीजों में जाती उसके पहले उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके CS जॉब स्टार्ट कर दी थी। और वहाँ का जो पे स्केल है, यहाँ का जो पे स्केल है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। द टाइमिंग थिंग्स आर डिफरेंट, एम्पल ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट ओवर देयर। यस, ऑब्वियसली स्कोप इज ऑल्सो डिफरेंट। अभी उसको वर्क फ्रॉम होम में भी काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, हमारे यहाँ पे तो वी हैव टू स्ट्रगल। दिस इज व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट, राइट। दिस इज द रियल हार्श रियलिटी, आई वुड से। अ बिट ऑफ डिफरेंसेस रिलेटेड टू द स्कोप वाज देयर। अहमदाबाद में वी हैव एम्पल ऑफ कंपनीज, तो बहुत स्कोप रहता है उस चीज का। ओके। एंड मैम यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि काफी सारी फीमेल कैंडिडेट्स है जो आफ्टर मैरिज उनका जो गोल्स है, उनके जो विजन है, उनका जो करियर है, वो काफी बीच में हैम्पर हो जाता है आफ्टर मैरिज, क्योंकि उसमें काफी सारा गैप भी आता है। तो जैसे आपने रिकवर किया इस स्टेज को लेके, अभी आप सक्सेसफुली आप वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए क्या मेजर हिंट्स आप देना चाहते हो ऐसे फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट्स भी आप समझ लीजिए जिनके गैप्स आ जाता है काफी, तो वो कैसे इस चीज को रिकवर करके आगे बढ़ सकते ओके, सी बेसिकली अभी तो वैसे भी लोगों का थॉट प्रोसेस काफी चेंज हो गया है। एवरीवन इज इनटू एकेडमिक्स। लोग इन लॉज को भी समझ आने लग गया है, स्पाउस को भी समझ आता है कि एकेडमिक को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। फिर भी कुछ कुछ ऐसी फैमिलीज होती है जिसमें इट इज नॉट दैट इजी फॉर अ मैरिड वुमेन टू परस्यू हर एकेडमिक्स। सो बेसिकली सबसे पहली चीज तो आपको ये बताना होता है आपकी फैमिली को, ये आपको 100% उनको फील करा देना होता है कि यू आर मेंट फॉर एकेडमिक्स, कि आप उसमें बहुत अच्छे लेवल पे कुछ कर सकते हो। इट शुड नॉट बी खाली आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। समवन इज इन्वेस्टिंग इन योर एकेडमिक्स, राइट। उनको रिटर्न मिलता है और दिखता है कि वो चीज कंप्लीट करने से उस फैमिली का भी रेपुटेशन हाई होने वाला है। तो एवरीवन हेल्प्स इन दैट, राइट। And हो? like in my case, I would say my husband was real support for me. He was the person जिन्होंने बोला था कि नहीं श्वेता को पढ़ना है तो पढ़ने दो, उसको जो सीए करना है कि सीएस करना है, whatever she wants to do, we will be helping her. But the only constraint was घर नहीं हिलना चाहिए। तुम्हारे बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, खाना पीना, जो भी चीजें एक मदर एज अ होम मेकर करनी होती है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। दैट इज द मेजर थिंग। और हमको भी एज अ मॉम हमको गिल्ट हो जाता है कि हम हमारी पढ़ाई के चक्कर में हमारे बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते या घर पे ध्यान नहीं दे पाते, राइट। तो इसलिए लेडीज थोड़ा स्टेप बैक हो जाती है कि ना तो फैमिली से सपोर्ट मिलेगा और हम भी जो कर रहे थे वो हम पूरा फुल फ्लेजेडली नहीं कर पाएंगे। येस, यू हैव टू सेक्रीफाइस लॉट मेनी थिंग्स। अगर आप दो चीजें कर रहे हो, आप अपना घर जो 24/7
7 आपकी एक ड्यूटी है, उसको भी कर रहे हो और साथ में आप अपना ड्रीम भी फुलफिल करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन आई वाज परस्यूइंग सीएस, आई रिमेम्बर कि मैं रात को 3 बजे तक भी पढ़ती थी कि नहीं, मुझे 6 बजे से मेरे घर के काम में लगना है, तो हैव टू सेक्रीफाइस माई स्लीप, या आई हैव टू सेक्रीफाइस शादियों में जाना, या गॉसिप करना, सब एक साथ बैठ के मस्ती करते हैं, दैट टाइम आई यूज्ड टू टेक आउट एंड स्टडी, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ गोल पर्पस फुलफिल करना है और आप इतने डेडिकेटेड हो उस चीज के लिए, देन इवेंचुअली you'll find the things and you have to prove your family also. It happens with your own parents also. अगर मेरा बच्चा है आगे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहा है, हम 1 साल हेल्प करेंगे, 2 साल हेल्प करेंगे, अगर हमको दिखेगा कि ना बच्चा कुछ कर रहा है और पैसा वेस्ट हो रहा है, तो वी बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो वी वुड से स्टॉप दिस, जो कर सकते हो वो करो, गॉट इट, और एल्स सिट एट होम, और हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, डू दैट थिंग। तो सेम इज एप्लीकेबल टू योर इन लॉज ऑल्सो, फॉर टू योर हस्बैंड ऑल्सो, वो भी यही बोलेंगे कि कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो इस चीज में, एंड देन यू आर ऑल्सो ब्लेमिंग देम, आप लोगों की वजह से मैं नहीं कर पाती काम कंप्लीट के, Yes, घर का yes. काम ज्यादा होता है या बच्चों का काम ज्यादा होता है। नो, इफ यू हैव दैट थिंग इन यू, यूल डू इट, कैसे भी करोगे आप, राइट। दैट इज द थिंग, Exactly. दैट इज द ओनली थिंग दैट women have to take care of, But मैम and take managing both everything on things. yourself. यस यस, बट यू हैड सेड दैट कि आपको होम का जो मतलब घर का जो हाउस होल्ड वर्क है वो भी मैनेज करना है, किड्स को भी मैनेज करना है, एंड एट द सेम टाइम यू आर मैनेजिंग योर ऑफिस लाइफ ऑल्सो। तो इन द ट्वेंटी Yes, फोर आवर्स ये मैनेज करना it's अपने आप में it's एक बहुत double. बड़ी आर्ट है। Yes, it's double. बट मेरे को तो कुछ एक डिग्री चाहिए था, मुझे उसको आई वांटेड टू यूज इट एज एन ऑर्नामेंट, कि हाँ आई हैव अटेन्ड दैट थिंग, राइट। बिकॉज मेरे फ्रेंड जो भी स्कूल फ्रेंड थे, या अभी मैंने 10-12 काफी साल पहले कर लिया, 25 साल पहले कंप्लीट कर लिया, स्टिल आई गो टू दोज स्कूल्स नो, तो पीपल आस्क मी श्वेता क्या कर रही हो, तुमने क्या करा, तो मुझे हॉन्ट करता था कि ओ आई हैव नॉट डन एनीथिंग, लाइक मैंने सिर्फ बीकॉम एमकॉम इज नथिंग, राइट, वो कुछ प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। तो आई यूज टू फील वेरी बैड कि वो जो बच्चे मेरे से, लाइक आई वाज फर्स्ट रैंक होल्डर, मेरे पीछे वाले जो रैंक होल्डर थे, दे हैव बिकम इंजीनियर एंड डॉक्टर्स एंड ब्ला ब्ला, एंड आई एम नथिंग। तो दैट यूज टू हॉन्ट मी, एंड आई नहीं भाई, अपन को भी करना है, सो दैट आई कैन टेल एंड समवन के लिए आई एम दिस, आई हैव डन दिस, वेदर आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ इट और नॉट, दैट इज सेकेंडरी, बट दैट इज समथिंग विच आई हैव अटेन्ड। और सीएस करना इज नॉट ऐसे खेल की बात नहीं है कि ऐसे ही हो राइट जाता है, राइट and that too in one attempt, being at home without tuitions, lot many restrictions. So I believe I used to pat my back then कि एग्जैक्टली हाँ श्वेता, you could do it. दो एग्जैक्टली कई बार setbacks आते हैं कि होगा नहीं ये blah blah, but when you think about it, no, you have no choice, do or die, so you do it eventually. That is the एग्जैक्टली। only thing. ये Yeah. कैंडिडेट के माइंड में ये सिचुएशन होनी चाहिए कि मुझे ये करना ही है। अगर वो जिद नहीं करना होगी, ही करना है, अगर वो जिद नहीं होगी वो खुद हो से, ही तो फिर जाता नहीं है, कर पाएगा, तो फिर नहीं कर पाएंगे। ये अगर वो जिद नहीं कैरी कर। करते हो आप, और उसके साथ साथ आप मैनेज करते हो सारी चीजें, जैसे आपने बताया कि मैं नाइट में भी स्टडीज करती थी, अगर वैसे आप मैनेज कर रहे हो या फिर डे टाइम पे आप थोड़ा ये मैनेज कर रहे हो, थोड़ा सेल्फ स्टडी करके आप मैनेज कर रहे हो, तभी पॉसिबल है, वरना इट इज नॉट पॉसिबल टू गेन ए करियर आफ्टर एन मैरिज। बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, बल्कि अभी तो मैंने देखा है काफी सारी, बिकॉज आई टेक सेशंस इन ईडीपी एट द जयपुर चैप्टर, राइट। सो देर आर मेनी फीमेल कैंडिडेट्स हु गेट मोटिवेटेड बाय मी, जब मैं बोलती हूँ कि मैंने शादी के 12-13 साल बाद में सीएस करा, तो दे ऑलवेज फील कि मैम हमारी शादी हो गई, हमको तो लग रहा था हम कर ही नहीं सकते, एंड व्हेन दे हियर टू मी दे फील लाइक वाओ, इफ शी कुड डू इट वी कैन ऑल्सो डू इट। राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग किड्स ऑल्सो एज restrictions, तो they can like I feel like I am motivating them, that makes a huge difference in their कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो। तो वो बहुत इजी ब्रीजी, और कई बार ही कॉल भी करते हैं कि मैम हम यहाँ स्टक हो जा रहे हैं, हम यहाँ पे कैसे मैनेज करें, तो आई ऑलवेज गिव देम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक ऑल्सो, कि ये ऐसे ऐसे करके आप अपने घर का काम भी, आपके इन लॉज का काम भी, आपके पढ़ाई के लिए भी, आपकी खुद की पसंद की चीज के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, एंड यू कैन इजिली डू एवरीथिंग। एग्जैक्टली, आई थिंक मैम योर जर्नी इज रियली मीनिंगफुल। और अगर कोई भी ये वीडियो देखता है, जो मैरिड गर्ल हो सकती है या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो स्टक हो रखा है अपनी लाइफ में, तो उनको एक बाउंस बैक मिलेगा कि हम लोग इस तरीके से भी आगे बढ़ सकते वेरी हैं, ट्रू, राइट। दैट मैम इज यहाँ पे एक्चुअली। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक हस्बैंड हस्बैंड जैसे सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कई बार फीमेल की तरफ से ये भी क्वेश्चन आता है कि नहीं हस्बैंड आप घर का थोड़ा काम मैनेज करो, और हम लोग ऑफिशियली या ऑफिस में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हस्बैंड को उस चीज में सपोर्ट करना चाहिए क्या? बिकॉज अपनी जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी में जनरली ये माना जाता है कि ठीक है, एज ए मेल पर्सन आप इसको मेजरली आप हैंडल कर रहे हो फाइनेंस को लेके, और दिस इज जनरली जस्ट एन एडेंडम और सप्लीमेंट विद द हस्बैंड, वाइफ का जो वर्किंग है।
तो आपको क्या लगता है तो कि इन चीजों में आगे जाके चेंज होने वाला है कुछ? इट विल टेक ह्यूज टाइम। बहुत टाइम, राजस्थान के लिए तो अभी बहुत टाइम लगेगा। लेडीज बाहर निकल गई है घर से, वो भी मुझे अचीवमेंट लगता है। कि अभी देखते हैं तो पहले ऐसे होता था 10 में से 1 घर की लेडीज पढ़ाई करके या जॉब कर रही होती थी, अभी 10 में से 6 घर में से ये चल रहा है, राइट। तो आई फील कि चलो थोड़ा चेंज आया, बट जिस लेवल का चेंज आप बोल रहे हैं ना कि मेन और वुमेन का सेम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अर्निंग, सेम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एक्सपेंसेस, या अगर सेम कंट्रीब्यूशन है भी ना तो भी गेटिंग दैट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द फैमिली, दैट इज इट विल टेक ह्यूज टाइम। दो जैसे मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ, वहां पे कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहां ये चीज एक्सेप्ट करी जाती है। वहां बहुत इजी ओके। हो जाता है फैमिली मेंबर्स को समझाना कि यस वी बोथ आर इक्वल, वी बोथ आर अर्निंग, वी बोथ आर पुटिंग इनटू द एफर्ट्स फॉर आवर चिल्ड्रन, या फ्यूचर बनाने के लिए, हमारी खुद की सेविंग्स के लिए। बट हियर इवेंचुअली यूल हियर दिस, स्टॉप दिस ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा कम कमाएंगे, घर चलेगा जैसा चलता था, यू कैन स्टॉप एंड मैनेज योर हाउस। दैट इज एक्चुअली आवर कल्चर। तो उसको हम वो तो नहीं कर सकते कि नहीं ये गलत चीज है, ये सही चीज है। जिसका जो जैसा कल्चर होगा वो वैसे चलेगा। जैसे साउथ में होता है कि मदर्स का सरनेम लगता है, हमारे यहाँ होता है फादर्स का सरनेम लगता है। तो एग्जैक्टली। दोनों में से कोई भी चीज गलत नहीं है, वो वहां का कल्चर है, यहाँ का कल्चर है। हमें जब मुझे पता था कि मुझे राजस्थान में रहना है, मुझे जयपुर में रहना है, और यहाँ के कल्चर को फॉलो करते हुए मेरे ड्रीम्स भी फुलफिल करने हैं, तो मैं उसके लिए रास्ता निकालूंगी रेदर देन फाइटिंग फॉर द थिंग्स कि नो आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ब्ला ब्ला ब्ला। बिकॉज इवेंचुअली आई वॉन्ट टू फुलफिल माई, मेरे को जो करना है वो करना है, राइट। तो वो शांति से होगा, उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट मैम, आपने काफी सारे इनपुट्स हमारे साथ दिए। एंड काफी प्रोफेशनल से डिस्कशन हुआ था, वो सीएस सीए या फिर एडवोकेट से आईआईटी आईआईएम्स के एलुमनीज थे। बट आपने थोड़ा थोड़ा जो पर्सनली एड ऑन किया कि हम एज अ फीमेल कैंडिडेट इस तरह से जो स्ट्रगल और चैलेंजेस आते हैं उसको हम इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, दैट इज रियली मीनिंगफुल। तो इसके साथ साथ में एक चीज मैम आपसे और पूछना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द जर्नी आफ्टर मैरिज और बिफोर द मैरिज आपके साथ क्या ऐसा मोटिवेशनल मंत्र है जो आपने आपके साथ कैरी किया, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे मोटिवेशनल मंत्रास हो सकते हैं, लाइक आपके कोई गुरु हो जिनसे जिनसे आप हमेशा उनसे ध्यान लेते हो, या फिर कोई ऐसा बुक्स हो जो आपने बुक रीडिंग की हो, ऐसा कुछ भी मोटिवेशनल मंत्र दैट यू हैड कैरीड विद योरसेल्फ ड्यूरिंग द जर्नी, पास्ट जर्नी? ओके। शादी के पहले तो आई यूज टू गेट फैसिनेटेड बाय द विमेन जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा कुछ काम किया हो, या इवन अगर कोई विमेन बुलेट चलाती है, कोई लेडी बुलेट चलाती है, या कोई माउंटेनिंग करती है, तो दोज थिंग्स फैसिनेटेड मी अ लॉट। कि अरे ये बंदी एकदम अलग है, शी इज आउट ऑफ द क्राउड, नो, सबकी नजर उस पे जाती है। तो आई वॉन्ट टू बी देयर। अब वो कैसे क्या आई डोंट नो, बट आई वॉन्ट टू बी देयर। वो छोटी भी चीज हो सकती है कि मैं वॉक कर रही हूँ, मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ, मेरे आगे लेडी ब्रेस्ट वॉक कर रही है, मैं थोड़ा स्लो वॉक कर रही हूँ, she is continuously ahead me, and I would feel no, I want to overtake her, I want to be there, right. That is always there, that I would call it as a competitive nature, कि मेरे को वहां पे पहुंचना है। तो वो रास्ता खुद से खुल जाता है, बस मेरा दिमाग फिर वहां पहुंचना कैसे पहुंचना उसके उसके लिए मैं स्टार्ट हो जाती हूँ कि हाउ टू रीच देयर, राइट। आफ्टर मैरिज थोड़े से अप डाउन आते हैं, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, राइट। सो आई स्टार्टेड रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। रोंडा बर्न की सीक्रेट इज सुपर फेमस, एंड आई ऑलरेडी हैव फुल सीरीज विथ मी, ओके। बहुत सारी है मेरे पास में। तो राइट नाउ ऑल्सो आई एम गोइंग थ्रू द मैजिक, जिसमें 28 दिन तक आपका ग्रेटिट्यूड लिखना होता है, जर्नल करना होता है। तो वो जैसे जैसे मुझे कभी सेटबैक होता है या डिमोटेड फील होता है, स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स जो वो मुझे वापस पुश करता है, याद दिलाता है, श्वेता आपने बहुत सारी चीजें करी, आपको और करना है, इससे भी आगे जाना है। एंड व्हेन यू गेट दैट एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम योर peers, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर relatives and societies, blah blah, so you feel और motivated, like you called me, तो I felt अच्छा कुछ तो एक्सपेक्टर होगा तभी हमको ये इनवाइट मिला है, there are so many people around, why did I get that, right. So that ओके। keeps me going कि ये ओके। चीज हमको करनी है, कंटिन्यू करनी है। एग्जैक्टली मैम। And I would like to add on, like I have 2 kids. One is in 12th, one is in 10th standard, and my elder son is a JEE aspirant. And I ओके। always tell him one mantra of mine कि CS जब मैं कर रही थी तो मेरे को माइंड में ये नहीं था कि CS नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगी, या CS नहीं हुआ तो मैं वो भी कर लूंगी, राइट। नो, आई हैव टू डू, नो अदर ऑप्शन। ये नहीं हुआ तो ओके। मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी सबको कि मैंने इतने साल बाद में स्टार्ट किया, एंड आई कुड नॉट डू इट, राइट। तो दैट आई वोंट बी एबल टू फेस, बिकॉज वन डे माई सन वॉज टेलिंग मी, मम्मा आईआईटी क्रैक नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, और वाई, देयर शुड नॉट बी एनी सेकंड देयर बी शुड वाला नॉट प्लान बी तो एनी होना ही प्लान बी। नहीं। मैंने ये पढ़ा भी है, देयर शुड ये नॉट बी एनी प्लान बी। अगर आपका प्लान नॉट, भी बन गया इसका मतलब प्लान ए कभी हो ही नहीं तो सकता। आप थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाओगे उधर आपके मेन आपके गोल माइंड से। में हमेशा प्लान बी का टेंशन वो रहेगा कि ठीक है यार वो तो है ही है, वो तो है ही हाँ, है, ये कुछ भी नहीं नहीं हुआ है तो तो ये ये तो तो है ही हो है। ही जाएगा।
Yes, yes. But that is actually, I believe, as per the age, you understand that thing. He is 18 right now, so he understands as per his level. Okay, I should be prepared with all the other things also. What if I am not able to do that? But back then, when I was 18, I used to feel कि नहीं, मेरे को तो ये करना है तो करना ही है. वो आपके एकदम अंदर जज्बा होगा ना, तो you can do anything. कुछ भी कर सकते हो. Exactly. That is Ma'am, the only thing I believe. right. You had added, ma'am, so much of inputs that all are material inputs. So Thank you. I think our talk show is really meaningful और आपकी जर्नी मीनिंगफुल थी. तो Actually, आपकी जर्नी मीनिंगफुल थी, तो हमारा जो मोटो है क्राफ्टिंग मीनिंगफुल स्टोरीज, उसी के साथ हमारा ये टारगेट है कि हम 101 एपिसोड्स कंप्लीट करें वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे. oh great, तो great. Hope 101 you complete एपिसोड्स. that thing soon. I want to add something about you also. Today when I was scrolling your YouTube channel, I was feeling कि आपका channel is providing such a good platform to all the youth right now. और ऐसे लोगों से जिन्होंने खुद वो चीज करी है, ना कि ऐसे कि भाई जो खुद ही अभी एस्पिरेंट है, वो those who are on the path of learning. बल्कि जैसे if I am there or if a lot many people around you have called IAS and IPS and blah blah things, blah blah people, तो वो लोग ने क्या स्ट्रगल लेके करा, तो वो जो अभी बच्चे कर रहे हैं ना, दे आर गेटिंग दैट थिंग क्लियर एंड दे डोंट फील कि हम अकेले वो सब स्ट्रगल सहन कर रहे हैं. जो यहाँ तक पहुंचे वो सब वो स्ट्रगल सहन करके पहुंचे ही है. तो दे गेट द पुश, ओके एवरीवन इज फेसिंग सेम थिंग, सो वी आर ऑन द सेम बोट, वी विल आल्सो डू दैट समडे, राइट? दैट इज ऑलवेज देयर इन द मिड. गुड जॉब, गुड जॉब. Thank you so much, ma'am. That's the purpose. Actually, many of the media persons are inviting the politicians and Bollywood celebrities, but none of the media person has invited any professionals to cover Yes. their journey. So we had initiated that कि हम लोग professionals की ही journey cover करेंगे. No any Bollywood celebrities, no politicians in this talk show. तो इसका genuine The purpose ये है. real heroes, you are going to take them there, right? Yeah, sure. Good So, effort ma'am, from your end. Hopefully, you are going to complete your 101 target soon. yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much. And definitely, ma'am, we'll catch you later. Okay. For sure. Thank you so much for inviting me here. Yeah, thank you, ma'am. Bye.